Hello everyone. Today our topic for discussion is directive principles of state policy. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में इस वीडियो में, ठीक है ना? So my dear students, as we know that so far the directive principles of state policy is concerned. This directive principles of state policy they are mentioned. कहाँ पे mentioned है? In part 4th of Indian Constitution. Are mentioned in part 4th. Directive principles of state policy mentioned in part 4th of Indian Constitution. Part 4th of Indian Constitution from article 36 to 51. Part 4th of Indian Constitution में क्या मेंशन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है ना? किस किस आर्टिकल, कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 36 to 55 डील्स किससे डील अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना? द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे borrowed the concept of directive principles of state policy from Irish constitution. The framers of the constitution कहां से borrow किया है इसको? Borrowed from Irish constitution. So framers of Indian constitution, जो framers थे constituent assembly के members of framers of the constitution, उन्होंने borrow किया directive principles of state policy को कहां से? From Irish, आयरलैंड के constitution से, Irish constitution. So Irish constitution ने in 1937 में इस कंसेप्ट को बारो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. कहां से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी सी दैट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बारो किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड जो वहां के फ्रेमवर्क उन्होंने कॉपी किया था इस कंसेप्ट को कहां से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना? We see that the directive principles of state policy they are non-justifiable. याद रखना, justifiable in nature. Justiciable or justifiable in nature means that the court is not responsible for their violation. Supreme Court is not responsible for their enforcement after their violation, ठीक है ना? So we see that the directive principles of state policy it was formalized. किसने फॉर्मुलाइज किया, फॉर्मुलेट किया इस कंसेप्ट को? तेज बहादुर कमेटी, जिसे हम कहते हैं तेज सप्रू कमेटी. सो तेज बहादुर सप्रू जो था, ही वाज द हेड ऑफ चेयरमैन ऑफ द कमेटी. सप्रू कमेटी का चेयरमैन था. उन्होंने ही फाइनलाइज किया किनको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को. तेज बहादुर, याद रखना, सप्रू कमेटी किसने किया? हु फार्मुलेटेड, हु फाइनलाइज्ड, किसने फाइनलाइज किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को? तेज बहादुर कमेटी, जिसे हम सप्रू कमेटी कहते हैं. फाइनलाइज्ड, किसने फाइनलाइज किया? सप्रू कमेटी, याद रखना, सप्रू कमेटी फाइनलाइज्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सप्रू कमेटी, तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू was the chairman of he was the head of the committee. सप्रू कमेटी का हेड कौन था? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया? फाइनलाइज किया. किसको फाइनलाइज किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना? सो वी सी दैट these directive principles of state policy according to B.R. Ambedkar declared that these principles are novel features of Indian Constitution. B.R. Ambedkar ने क्या बताया इनके बारे में, इन प्रिंसिपल्स के बारे में? according to B.R. Ambedkar, according to B.R. Ambedkar, these principles according to B.R. Ambedkar, these principles are novel features of Indian Constitution.
They are the novel features of Indian Constitution. According to B.R. Ambedkar, these principles are the novel features of Indian Constitution के novel features कौन से? Directive principles of state policy. किसने कहा? डॉक्टर B.R. Ambedkar, the architect of Indian Constitution. ठीक है ना? Now, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? कंसेप्ट का मेन एम क्या है? ठीक है ना? इस चैप्टर वी सी दैट दीज डायरेक्टिव्स दे आर इन द नेचर ऑफ डायरेक्शंस. क्या है? नेचर ऑफ डायरेक्शन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स. क्या है ये? दीज directives, these principles or these directives are in the nature of directions. क्या है? Are in the nature of directions. In the ये directions है. In the nature of directions. In the nature of directions to the legislature and executive wings. To the legislative and एग्जीक्यूटिव विंग्स. क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्शंस है. किन के लिए? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स के लिए डायरेक्शंस है. डायरेक्शंस एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू बी ऑब्जर्व्ड while formulating laws and policies. क्या है? एग्जीक्यूटिव विंग एंड लेजिस्लेटिव विंग को क्या है? डायरेक्शन है उनके लिए. जब वो पॉलिसी लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उनको इन डायरेक्शंस को जहन में रखे हुए, कीपिंग इन माइंड दीज डायरेक्शंस. क्लियर? ये डायरेक्शंस है. एम क्या है इनका? द एम क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी. याद रखना. इनको इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को. एम क्या है? द एम बिहाइंड देयर इंक्लूजन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी. Establishment of economic and social democracy. क्या है इसका एम? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी. एम क्या है? एम बिहाइंड द इंक्लूजन, एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इनको इंक्लूड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. लाया कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. एम क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ social and economic democracy. ठीक है ना? And we can say that directive principles of state policy, they constitute a very comprehensive social, economic and political program for, we can say that, for a modern welfare state. ठीक है ना? क्या है? Important feature क्या है इनका? One of the important feature of directive principles of state policy means these principles emphasize it that the state shall to promote. These principles emphasize that the state shall to promote. The state shall to promote. State shall try to promote welfare of people. By welfare of people. State क्या? Promotion of welfare state. एम क्या है? Important feature. Promotion of welfare state का concept कहाँ पे? Promotion of welfare state. Welfare of people. By state shall welfare of people by providing
them facilities like shelter, food and clothing. By providing them facilities like food, shelter and clothing. क्या है? Principles emphasize that the state shall to promote. क्या करेगा? स्टेट का काम क्या है? shall try to promote. State shall try to promote by welfare of people by providing them facilities like food, shelter and clothing. Promotion of welfare state का concept emphasized. We see that these principles emphasized the concept of the welfare state. ठीक है ना? और एक फीचर है इंपॉर्टेंट, another important feature क्या है? Important feature that we see that directive principles of state policy, they constitute a very comprehensive. Directive principles of state policy constitute a very comprehensive social economic and political program for a modern welfare state. Program for a modern welfare state. और एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी comprehensive social, economic and political program for a modern welfare state. Important feature. And we see that now the classification. अगर हम classification की बात करेंगे, किन की classification? Directive principles of state policy classification. We see that in Indian Constitution has not originally classified directive principles of state policy, but on the basis of their content and direction, they are usually classified into 3 types. अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में there is no mention about the qualification. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है for their qualification of इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की क्लासिफिकेशन के बारे में मेंशन नहीं है. कहां पे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. बट ऑन द बेस ऑफ देयर कंटेंट डायरेक्शन की बात हम करें, वी सी दैट दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. याद रखना, सोशलिस्टिक, गांधीयन प्रिंसिपल, liberal intellectual principles. याद रखना. इन ओरिजिनल का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, देयर डायरेक्शन, वी सी दैट डायरेक्शन दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. कितने टाइप्स हैं इनके? 3. किनके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के. सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल. थर्ड क्या है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स. ठीक है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इन माय नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 टाइप्स जो है: सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. सो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए.